What about Rajita? I was able to share all my answers to the students last time. So this. Good morning, Chef. Good afternoon. Chef Varinder Singh Rana. Good afternoon, Ramesh Chef. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm good, well, Jay. Excellent, thank you. Good. Nice to see you. Good afternoon, Okay, Chef Rana. Good afternoon. Excuse me, sorry. Chef Javaji, my mistake, Chef Rana goes first. After that comes Chef RK. My mistake. Oh, I know, that's right. Okay, no problem. Now I'll just give a brief on him. Should I go ahead and do that? No, can we just wait till the students log in and all okay, we still have 3 o'clock. Few more people. Yeah. Also, I'll just start welcoming them and yeah. Please go. Tell me when I have to do that. No problem. Thank you. Yeah, sure. Chef Saurabh, can we start the session because it's already 3? Yes, madam, we can start. Actually, in the second half, the network issues come slightly due to weather here. They will be gradually joining. Another 8 to 10 are left. Okay. All right. So welcome everyone to Indian Federation of Culinary Associations Chef Mastery's Virtual Classroom, the online workshop designed for Kaushal College, Ranchi, in association with Pan IIT Reach for India Foundation. We are on second session of day 5. The flow of the class is going to be Chef Rana, Dr. Chef Varinder Singh Rana will have his first session on pre-preparation and preparation techniques. Then we will have Chef RK who will come in later after his session. And then this is how the program is going to flow. We will break for this day later at 4 o'clock. Sorry, 5 o'clock. So Chef Javaji, I invite you to do the honors. Certainly. Welcome, formal welcome to Dr. Chef Varinder Singh Rana. He presently is the Dean of the School of Hotel Management, Airlines and Tourism at City University, Ludhiana. He's received a doctorate in PhD in hospitality from Amity University, Noida, and postgraduate in hotel management catering technology from St. Peter's University, Chennai. And even I would add before that, he's received his doctorate from the Amity University. It's a very, very renowned university. To get a hospitality PhD is something that he is so much knowledgeable. Maybe I'll also wait to learn from him. He is General Secretary of Chefs Association of Five Rivers, which is the nodal body of IFCA. He is the member of the Board of Management of GNA University and Board of Studies member of various universities. He has authored 12 books and 22 research papers. He served as head chef to Honorable President of India and President of Republic of Africa. Welcome, Chef Varinder Singh Rana, for this prestigious and most wanted thing for the children, these children and the students. We're looking forward to it. God bless you.
Thank Welcome. you. Thank you, Chef Ramesh. Can we stop sharing this? Yes. Yes, Chef. Yeah, that Yeah. there are, they will assist. Namaskar, good afternoon. This is Dr. Chef Varinder Singh Rana, and I am so glad that I am in front of you. And first of all, I would like to convey thanks to Indian Federation of Culinary Associations. They have taken initiative to share our knowledge amongst young professionals. And today it's my day where I have to share my learnings with all of you. And a very common question which has been asked during these days, that am I audible? Yes, Am I Chef. Yes, Chef, Yes, you Chef. are. just give me 1 minute to screen share. So hope you are able to see my screen. Yes, Chef, we can. Yes, Chef. So as this screen and the topic which has given to me is pre-preparations and preparation techniques. So you can tell me whether can I proceed in English or it will be a mixed or Hindi. It's as per your choice. आप बता दें मुझे मैं किस लैंग्वेज में बात करूं आपसे ताकि which will be comfortable for all the students. Chef, a mix of English and Hindi would be fine. Definitely, thank you so very much. So the title. Chef Varinder, Chef Rana, you've muted yourself. You'll have to unmute. Yes. So yes, the title slide, you can see pre-preparations and preparation techniques. So this is the topic which has given to me to share my knowledge, share my learnings with all of you. और pre-preparation और preparation techniques में difference क्या होता है? तो थोड़ा सा पहले मैं बताना चाहूँगा. You can see on the slide जहाँ पे बहुत सारे process जो है चल रहे हैं, जो काफी सारे मेथड्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं. बेसिकली दिस इज द एमलगमेशन. इसमें बहुत तरह तरह की टेक्निक्स यूज हो रही हैं, बहुत तरह के प्रोसेस यूज हो रहे हैं. और प्री प्रेपरेशन मींस प्रिपेयर करने से पहले का प्रोसेस, प्री प्रेपरेशन. सो प्री, बिफोर. और दूसरा होता है प्रेपरेशन टेक्निक्स विच इज व्हाइल वी गोइंग फॉर द एक्चुअल प्रेपरेशन पार्ट, वेयर वी एक्चुअली स्टार्ट द कुकिंग पार्ट. जब हम कुकिंग शुरू करते हैं, प्रेपरेशन शुरू करते हैं, तो कुछ टेक्निक्स वहां पे अडॉप्ट होती हैं. कुछ टेक्निक्स हैं जो प्रोसेस हैं वो प्रेपरेशन से भी पहले करने पड़ते हैं. और यही मेरा टॉपिक है. और यू कैन सी आई हैव मेंशन्ड द कौशल कॉलेज. बहुत ही अच्छा एक अपने आप में एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने भी लिया है और आईआईटी एल्यूमिनाई इसको रन कर रहे हैं. और जो शेफ्स मास्टरी यहाँ पे इंडियन फेडरेशन ऑफ कुलिनरी एसोसिएशन ने साथ में जोड़ के सारे शेफ्स की जो लर्निंग्स है आप तक पहुंचाने का ये इनिशिएटिव लिया है. तो मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ इस सभी शेफ्स को जिन्होंने ये सोच के साथ आगे प्रोत्साहन लिया है. तो प्री प्रेपरेशन एंड प्रेपरेशन टेक्निक्स, तो जो मेरा पूरे सेशन की आउटकम्स रहेंगी. So I have divided this session into 3 different aspects. First one is to be able to identify various pre-preparation techniques. तो जो जितनी भी pre-preparation techniques हैं उनको आप लोग जान सकें, आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें. कल को आपको पूछा जाए कि ये टेक्निक के बारे में आप जानते हैं तो आप उसे आइडेंटिफाई कर सकें. तो ये मेरी पहली एक आउटकम रहेगी इस सेशन की. The second outcome is to be able to explain different mixing techniques. मिक्सिंग लगता बहुत आसान सा वर्ड है कि कुछ मिक्स करना है, कुछ मिलाना है, लेकिन देयर आर सो मेनी डिफरेंट टेक्निक्स एंड प्रोसेस विच वी फॉलो. तो वो जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा और आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप लोगों को वो समझ जाएं और आप लोगों को एक अच्छे तरीके से मिक्सिंग टेक्निक्स के बारे में पता लग जाए.
तीसरी जो आउटकम है, the third outcome of my session is to be able to explain and apply various preparation techniques in cooking. So we have to understand that preparation is different from cooking. Cooking is just a part of preparation. When we talk about preparation, preparation बहुत ही बड़ी चीज है और cooking उसका एक सिंगल सा पार्ट है. तो ये हम एक्सप्लेन कर पाए और अप्लाई कर सकें वेरियस कुकिंग टेक्निक्स, ये मेरे पूरे सेशन की जो 45 मिनट्स का सेशन मुझे दिया गया है उसकी आउटकम्स हैं. और व्हाट आई हैव डन, आई हैव डिवाइडेड दिस होल सेशन इनटू ए मेन्यू. मेन्यू क्या है हमारा, इसमें जो 3 प्रोसेस लिए हैं हमने वही हैं. तो फर्स्ट प्रोसेस जो है मेरा रहेगा प्री प्रेपरेशन टर्म्स. तो प्री प्रेपरेशन टर्म्स यू विल सी सम पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन हेयर, कुछ पिक्चर्स भी लगाई हैं जिससे आप आराम से समझ सको उस प्रोसेस के बारे में. तो सबसे पहला प्री प्रेपरेशन जो है, वी हैव टू अंडरस्टैंड ए टर्म व्हिच इज कॉल्ड मीज़ा प्ला. तो मीज़ा प्ला क्या रहता है, उसका मतलब होता है एवरीथिंग एट इट्स ऑन प्लेस, कि हमने सारा कुछ अरेंज करके उस जगह पे रख लेना है जहां पे हमने प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है. तो एक टर्म आप लोग हमेशा बार बार सुनेंगे किचन के अंदर, मीज़ा बना, मीज़ा हो गया, मीज़ा हो गया, मीज़ा तैयार कर लो, मीज़ा. सो व्हाट इज दैट मीज़ा प्ला? मीज़ा प्ला इज यू हैव टू अरेंज एवरीथिंग. आपने सब कुछ जो आपको डिश की प्रेपरेशन के लिए चाहिए वो आपने अरेंजमेंट्स करने हैं, तो उसको कहते हैं मीज़ा प्ला. और उसके अंदर सबसे पहला प्रोसेस हमारा रहेगा, वी हैव टू प्रिक्योर द इंग्रेडिएंट्स. प्रिक्योरमेंट के बाद क्या करना होता है, हमने कुछ चीजों स्टार्ट दी मीज़ा प्ला. तो आप वॉश करके लाओगे जितने भी चीजें आप यूज करना चाहोगे. आप पल्सेस यूज कर रहे हो तो समटाइम्स यू हैव टू वॉश एंड ड्रेन. यहाँ पे वॉशिंग जो है वो पहला प्रोसेस रहता है, जिसका मतलब है सुपरफिशियल डर्ट इज रिमूवल ड्यूरिंग वॉशिंग. कई मिट्टी, कुछ कहीं पे मिट्टी लगी होगी, कहीं पे कुछ होगा, तो आपने उसको रिमूव करना है ताकि वो जो है हम यूज कर सकें, वो एक यूजेस के लिए बन सके जो इंग्रेडिएंट आप यूज करना चाहते हैं. वेजिटेबल, फिश, मीट एंड समटाइम्स इवन एग्स आर वॉश्ड विद कोल्ड वाटर बिफोर एनी अदर प्रोसेस. तो किसकी प्रोसेस पे जाने से पहले हम ये प्रोसेस करते हैं जो वॉशिंग है. और जो वेजिटेबल्स, मीट और फिश है उसको कोल्ड वाटर में क्यों करते हैं, एक लॉजिक होता है जिसको पहले कहते हैं कि हमें टेम्परेचर से, जो हमारा डेंजर जोन है, डेंजर जोन एक ऐसा टेम्परेचर है जो 5 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तक रहता है. उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो करता है. तो उसके अंदर 5 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. नंबर 1 इज द प्रोडक्ट्स. तो जो प्रोडक्ट्स हैं वी हैव टू कीप ऑल द प्रोडक्ट्स सेफ और उस रेंज से बाहर करने होते हैं. तो यहाँ पे हम कोल्ड वाटर से उसका टेम्परेचर जो है कूल कर देते हैं. दूसरा जो होता है प्रेमाइसिस, जो किचन रहती है जिसके अंदर आप खाना बना रहे हो, तो वो प्रेमाइसिस जो है दैट शुड बी बैक्टीरिया फ्री, बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए किचन. थर्ड पी, एक्चुअली आई हैव डिवाइडेड दीज पैरामीटर्स इनटू 5 पीस. फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट, सेकंड वन इज प्रेमाइसिस व्हिच इज किचन, थर्ड वन इज पीपल, दोज हु आर एसोसिएटेड विद दैट फूड. जो शेफ्स हैं जो हैंडल करेंगे उस खाने को, तो वो बहुत साफ सुथरे होने चाहिए बिकॉज आवर बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस. सो 98.4 फ़ारेनहाइट जो हमारा टेम्परेचर है उसका जो एक्चुअल करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस आता है, विच इज अंडर डेंजर जोन और सबसे सेंटर में आता है. तो सबसे ज्यादा खतरा क्या है, हमारे से होता है. तो इसलिए वी ऑलवेज वेयर शेफ यूनिफॉर्म्स एंड शेफ अटायर्स, कि ताकि हम उससे कम टच में रहें. तो अगला है जो पी, दैट इज प्रोसेस. हमें एक बिल्कुल वही प्रोसेस यूज करने हैं विच आर स्टैंडर्डाइज. फिफ्थ पी इज प्लांट एंड मशीनरी. इक्विपमेंट्स जो हैंडल कर रहे हो, जो प्लांट है वो बिल्कुल ही क्लीन होना चाहिए. तो उसके बाद ये 5 जो मैंने मीज़ा प्ला बनाया, फिर मीज़ा प्ला शुरू किया जाता है. उसमें पहला काम आता है वॉशिंग. पील एंड स्क्रैप, दिस इज प्री प्रेपरेशन टर्म अगेन. पीलिंग अलग है, स्क्रैपिंग अलग है. पीलिंग क्या होती है, टू रिमूव द आउटर लेयर स्किन बाय स्ट्रिपिंग और पुलिंग ऑफ विद योर फिंगर और ए नाइफ. आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए पीलर और द नाइफ आपको आउटर स्किन है जो वो रिमूव करनी है. और जो स्क्रैपिंग होती है यू डू विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर. उसमें क्या लेमन जस्ट निकाल सकते हैं, जिंजर स्क्रैप कर सकते हैं, और अदरवाइज एक्चुअली पूरा का पूरा जो पोटैटो का ले ऑफ करते हैं उसको भी स्क्रैप किया जा सकता है.
Pairing is something which is very similar to peeling, but only the difference is this कि पेयरिंग में नाइफ की हेल्प से सर्कुलर मोशन में जो आउटर स्किन है वो रिमूव की जाती है, तो उसको पील, इट इज बेसिकली peeling only you can say, but only the motion is circular and you always do it with the help of knife. Cuttings. So there are different types of cuttings which are the part of pre-preparations. You can see, we will not go into the detailing, but I will just give you the glimpses of this. Battens हैं हमारे पास, जार्दने, juliens हैं, rough juliens हैं, dices, medium dices. So dices can be categorized into Macedua है, medium dice, small dices, Paisson, chiffonnet, roundel slices, diagonal, brunoise. देन रोलिंग कट्स हैं, टोरने हैं, मशरूम्स का किया जा सकता है, पोटैटोज को करते हैं. देन स्लिट और स्प्लिट इनटू टू, जो ग्रीन चिलीज रहती हैं, वेजीज हैं, लेमन वेजीज होती हैं, निकाली जाती हैं, क्रश किया जाता है समटाइम्स. और मिरपुआ विच इज रफली कट रूट वेजिटेबल्स. सो मिरपुआ, ये सारी क्या है, कटिंग्स हैं. इट डिपेंड्स अपॉन डिश टू डिश, हमें कौन सी डिश चाहिए. और बेसिकली कटिंग है क्या, रिड्यूसिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स. तो ये आपने ये भी हमारी प्री प्रेपरेशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग्स. अगेन ग्रेटिंग, समटाइम्स वी हैव टू ग्रेट, कद्दूकस करना कहते हैं उसको हिंदी में. सो उसमें भी एक फाइन ग्रेटर होता है, ग्रेटर है, मीडियम. 3 डिफरेंट जो साइजेस रहते हैं कि आपको किस चीज को बनाना है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं. रिड्यूसिंग टू फाइन पार्टिकल्स बाय रबिंग ओवर ए रफ और शार्प सरफेस, तो ये ग्रेट करना रहता है. Then we have mincing. Mincing जो है, we have meat mincers जिनके अंदर आप chunks of meat you can put और mincing हो जाती है. Mincing basically कहते हैं ना, मार मार के तुम्हारा कीमा बना दूंगा, तो कीमा is basically mincing. तो यहाँ पे very fine and uneven pieces जो रहते हैं उनको कहा जाता है कीमा. So you can do it with the help of French or chef's knife or with the help of mincer. Hope all of you are getting or understanding all the points. Yes, chef. Thank you, thank you. Yes, आपकी जो रिस्पॉन्स है ना, रिस्पॉन्स से chef. बिल्कुल बिल्कुल इतनी एनर्जी और आ जाती है कि रिस्पॉन्स आना है. अदरवाइज इन ऑनलाइन वी ऑलवेज फील कि हम अकेले ही बात कर रहे हैं. तो बीच में आई विल आस्क यू फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस, सो बी अलर्ट. और देन आई विल शेयर फ्यू ऑफ द गिफ्ट्स थ्रू इफ्का, जो अच्छे से बिल्कुल रिप्लाई करेगा. Then score. So this is maybe a new term for few of the students. Scoring is nothing but जितना भी जब हमने मैरिनेशन करनी होती है, तो जो बिग पीसीज ऑफ मीट्स we give cuts, थोड़े डीप कट्स दे देते हैं ताकि जो हमारी मैरिनेशन है वो उसकी अंदर तक चली जाए, और जो उसकी फ्लेवर्स हैं, जो हमने इंग्रेडिएंट्स मैरिनेशन में जो स्पाइसेस या फिर हर्ब्स डाले हैं, वो अंदर तक चले जाएं और उसको टेंडर भी कर दें. So scoring, to make small straight shallow cuts with slicing knife in the surface of food, often done to tenderize meat or to let sauces soak in, ताकि soak कर ले उसको अच्छे से, जो आप sauces है जो use करोगे. Then we have freeze. Sometimes you have to freeze your ingredients. फ्रीज करके फिर निकालना होता है, फ्रीज फिर फ्रीजर में डालो फिर निकालो. सो ये भी एक प्री प्रेपरेशन टर्म है जो हम यूज करते हैं किचन के अंदर. टू लोअर ए फूड टेम्परेचर टू फ्रीजिंग और बिलो बाय प्लेसिंग इट इन ए फ्रीजर. कई बार आपको बहुत जल्दी टेम्परेचर फिर उसमें लेके जाना होता है, तो आप उसको फ्रीज करते हो फिर, क्योंकि रूम टेम्परेचर जो होता है वो अलोन ही करता है आपको काम करने के लिए. तो समटाइम्स यू हैव टू गो फॉर दिस. डीफ्रोस्ट और थॉइंग. डीफ्रोस्ट होता है फ्रोजन खाने को दोबारा आप रूम अपने टेम्परेचर में लेके आते हो अबव 5 डिग्री. तो उसमें क्या होता है कि जब आपका फूड फ्रोजन होता है तो उसमें आइस पार्टिकल्स रहते हैं. अगर आप डायरेक्टली उसको यूज करोगे तो वो पानी छोड़ेंगे और समटाइम्स एक अलग सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है. तो उसको पहले डीफ्रोस्ट किया जाता है, टेम्परेचर पे लाया जाता है, फिर उसको यूज किया जाता है. टू एक्सपोज टू वार्म इन दी ऑर्डर टू फ्री फ्रॉम ए फ्रोजन स्टेट. तो थोइंग हम वॉक इन में रख के भी कर लेते हैं. थोइंग बेसिकली अब ये नहीं है कि आपने डीप फ्रीजर से निकाला और सीधा रूम में रख दिया, तो डायरेक्टली रखोगे तो बैक्टीरिया कैन कम. तो पहले हमें उसको अबव 5 डिग्री पे लेके आना होता है,
तो जब आप 5 तक लेके आते हो उसके बाद आप उसको यूज करना शुरू करते हो। डिसॉल्व, so dissolve is nothing but to cause a solid food to turn into or become part of a liquid। जब आप किसी चीज को डिसॉल्व करते हो, शुगर डिसॉल्व करते हो किसी लिक्विड के अंदर, तो वो लिक्विड बन जाता है। तो सिमिलरली कुछ बैटर बनाने हैं तो हम डिसॉल्व करते हैं चीजों को, सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिसॉल्व। देन वी हैव ड्रेन, जब आप दालें बनाते हो आप उसको ड्रेन करते हो पानी के अंदर, राइस ड्रेन करते हो, तो उसमें क्या होता है, कोलेंडर की उसमें और ड्राइंग पेपर के ऊपर, टॉवल के ऊपर आप ड्रेन करते हो ताकि जो एक्सेस लिक्विड है वो निकल जाए। स्ट्रेन करना, इट इज सेम द प्रोसेस लाइक ड्रेनिंग। इसमें क्या होता है, टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड मटेरियल्स बाय पोरिंग द मिक्सचर थ्रू ए स्ट्रेनर और ए सीव। तो आप जो छन्नी होती है, जहाँ हमारे पास स्ट्रेनर है, उससे आप स्ट्रेन कर लेते हो और सेपरेट कर देते हो लिक्विड मटेरियल, और लिक्विड निकल जाता है, सॉलिड मटेरियल जो आपने यूज करना होता है आप वो यूज कर लेते हो। अगला है फ्लावर, ड्रेज एंड कोट। समटाइम्स यू हैव टू यूज फ्लावर। फ्लावर आप कोटिंग के लिए यूज करते हो, क्रम्ब लगा के रखना पड़ता है चीजों को, कोटिंग करनी पड़ती है बैटर की, बैटर बना के, तो ये भी हम पहले ही रख लेते हैं प्री प्रेपरेशन में। और अगर आपने ब्रेड क्रम्ब चाहिए तो आप ब्रेड क्रम्ब बना के रखते हो, आपको फ्लावर चाहिए, कोई राइस फ्लावर चाहिए और पल्सेस फ्लावर चाहिए, तो आप तैयार करके रख लेते हो बना के, उसको ग्राइंड करके। तो दैट इज अगेन द प्री प्रेपरेशन। समटाइम्स यू हैव टू कोट द मटेरियल, तो वो कोटिंग के लिए यूज किया जाता है, तो ये आपने प्री प्रेपरेशन में करके रखना होता है। नाउ देन वी हैव द greasing. Sometimes you have to rub fat on the surface of a food or a cooking material, तो आप ग्रीस करते हो, बटर लगा के रख देते हो। बेकिंग में तो ये मेनली टिन्स पे और मोल्ड्स पे किया जाता है, पुडिंग्स में भी किया जाता है। स्टीमिंग, समटाइम्स यू मेक कुछ स्टीम से कर रहे हो तब भी आपको, ताकि जब आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इजीली रिमूव हो सके। डस्ट, तो डस्टिंग क्या होता है, आप फ्लावर स्प्रिंकल करते हो सरफेस पे, कभी क्रम करते हो, कभी फ्लावर करते हो, शुगर। सो वो डस्ट करना जो है वो किस लिए किया जाता है, ताकि जो आपका जो भी आप बनाना चाहते हो वो स्टिक ना करे, वो जुड़े ना। तो वो जो डस्टिंग होती है वो सरफेस पे जुड़ने नहीं देती है उसको, इजीली आप उसको निकाल सकते हो। यू कैन सी हेयर चपातीज बन रही हैं तो नीचे आप डस्ट करते हो फ्लावर को, तो रोलिंग के बाद में, तो दिस इज दी बेसिकली डस्टिंग। Marinate, so this is very interesting word, marinate. Marinate is marination which has taken from the word called marine, समुंदर से लिया गया वर्ड है marination, जिसके अंदर two major ingredients जो सी के अंदर पाए जाते हैं, फर्स्ट इज एसिड एंड सेकंड वन इज सॉल्ट। तो जो दो चीजें होती हैं मैरिनेशन में वो ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहती हैं। आपको एक एसिड, कोई भी लेमन, विनेगर, कुछ भी यूज, टेंडराइजिंग इंग्रेडिएंट यूज करते हो, टेंडराइजर। दूसरा आपने यहाँ पे कोई स्पाइसेस होता है उसके अंदर, तो समुंदर में तो वैसे ही सॉल्ट आ जाता है, तो लेकिन यहाँ पे उसी वर्ड से ये वर्ड डिराइव हुआ था मैरिनेशन। तो टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड अदर समटाइम्स यू पुट हर्ब्स और स्पाइसेस फिर मैरिनेट करते हो, बट यू ऑलवेज सी की उसके अंदर एक टेंडराइजिंग जो इंग्रेडिएंट है वो हमेशा ही रहता है। टेंडराइजर्स हैं बहुत सारे हैं, कुछ नेचुरल रहते हैं, इंग्रेडिएंट्स में भी रहते हैं, रॉ पपाया है, पाइनएप्पल है, और आपको मार्केट में मीट टेंडराइजर भी मिलते हैं विच जो कि है कनेक्टिव टिश्यूज को ब्रेक कर देते हैं, फाइबर को ब्रेक कर देते हैं, उससे क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है टिश्यू। स्टूडेंट्स मुझे एक चीज बताओ कि जो यंग एनिमल्स होते हैं उनका जो मीट होता है वो क्यों सॉफ्ट होता है, टेंडर क्यों होता है? हेलो, ये स्टूडेंट्स, जो हमारे यंग एनिमल्स का मीट होता है, जो यंग बर्ड्स का मीट होता है वो सॉफ्ट क्यों होता है? वो बहुत टेंडर होता है, और जो जितने दूसरे ओल्ड एनिमल्स होते हैं उसका बहुत ही हार्ड होना शुरू हो जाता है। रीजंस क्या है, कोई बताएगा? चलो एनी हाउ यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं।
Yes, next one is soaking. Somebody's mic is on. Yes. सोक करना, तो सोकिंग क्या होती है? टू इमर्स फूड इन ए लिक्विड फॉर पर्पस ऑफ वेटिंग, सॉफ्टनिंग, डिसॉल्विंग और क्लीनिंग। तो हम सोक करके रख देते हैं ताकि वो डूबता रहे, सोक हो, और उसको हम बाद में यूज कर सकें। कई चीजें क्या होती हैं हवा के अंदर, जब उसको एयर मिलती है तो वो खराब हो जाती है, तो कुछ चीजों को हमें सोक करके रखना पड़ता है, ठीक है, तो वो सोकिंग रहती है। somebody's mic is on, can you please put off your mics? आप Students, Ruby, please. students, please. Ruby Kujur, mute your audio, please, immediately. Chef Saurabh, I've got logged out again. So I just check if you're the host, please. Chef Atul is host, sir. Okay. Okay. Yes. I've got logged. Done. So soaking is basically आपको जो खाना, जो भी मेन इंग्रेडिएंट है उसको डिसॉल्व कर देना है लिक्विड के अंदर, और वो पड़ा रहेगा, तो उसको दैट प्रोसेस इज नोन एज सोकिंग। अब मिक्सिंग टर्म्स, जो हमारा प्री प्रेपरेशन तो हमारा फर्स्ट आउटकम था, इसमें से कोई ऐसी चीज स्टूडेंट जो आपको अभी क्लियर ना हुई हो, यू कैन मेंशन इन द चैट बॉक्स, आई कैन सी इन द चैट। देन शेफ, किसी ने आंसर दिया था, शेफ एनिमल ग्रोथ करते हैं। मीना, यस, एनिमल ग्रो करते हैं, और जब जितना भी ज्यादा मूवमेंट होती है, व्हेन दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी, जो मसल्स होते हैं उतने ही टफ होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जो बेबी जो बेबी और जो यंग एनिमल्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि वो अभी इतने मूव नहीं किए होते हैं, बहुत कम चले होते हैं, तो उनके मसल्स और टिश्यूज जो होते हैं वो सॉफ्ट ही रहते हैं। तो जितनी, अगर हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स उतने ही स्ट्रांग होने शुरू हो जाते हैं जिस एक्सरसाइज को हम करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो उनकी बॉडी उतनी ही सॉफ्ट होती है। तो यही प्रोसेस जो है एनिमल्स पे चलता है। यस, मिक्सिंग टर्म जो हमारी सेकंड आउटकम थी, मिक्सिंग जो हमारी सेकंड है, उसमें सबसे पहला होता है बीट करना, पीटना विद द हेल्प ऑफ वायर विस्क, यू कैन डू इट। और हमारे पास इसमें बेसिकली क्या होता है कि इनकॉर्पोरेट भी हो जाती है एयर, और थोड़ा सा उसका जो आप देखोगे कि उसके अंदर जब एयर करेगी, तो आप बीट करने के बाद उस चीज को पकाओगे तो इमीडिएटली क्या है, रेजिंग हो जाएगी, रेजिंग। तो ये रेजिंग क्या है, नेचुरल रेजनिंग होगी, और जो नेचुरल लेवनिंग होती है वो इन्हीं प्रोसेस के थ्रू होती है, जो नेचुरल मिक्सिंग हो रही है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम विद द हेल्प ऑफ बीटर और वायर विस्क जब हम उसको हिलाते हैं, फेंटते हैं, तो क्या होता है, हवा जो है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड बीटिंग। दूसरा है ब्लेंड करना, ब्लेंड है टू स्टर और मिक्स इंग्रेडिएंट अंटिल दे आर थोरोली कंबाइंड और स्मूथ। तो मिल भी जाते हैं, स्मूथ पेस्ट भी बन जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर और ग्राइंडर और मिक्सर। तो ये भी एक टेक्निक है ब्लेंड करना, मिलाना विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग। पहला क्या था, बीट करके मिलाना, दूसरा है ब्लेंड। थर्ड वन इज कंबाइन, इट इज बेसिकली वेरी नेचुरल type of mixing where you with the help of spoon or with the help of spatula or with the help of ladles you can mix two or more ingredients. तो इसको to blend two or more ingredients with the help of spoon or with the help of spatula, combine करना, that is known as combining. Next is cream, the technique of softening solid fat like shortening of butter, blending it with other ingredients. तो एक टेक्सचर जो है टू बेसिकली जो सॉलिड फैट है उसको सॉफ्टन करना, टू ब्रिंग इट इनटू द कंसिस्टेंसी लाइक क्रीम। जब आप क्रीम पोर करते हो तो वो पोर उस क्रीमिंग टेक्सचर में आ जाए, तो ये क्रीम करना रहता है। कटिन भी यही रहता है, बेसिकली दिस हैज बीन डन इन द बेकरी पार्ट। कटिंग में क्या होता है, कंबाइन फ्लावर एंड सॉलिड फैट बाय कटिंग द फैट इनटू टिनी पीसेस, बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में आप कट कर लेते हो विद द हेल्प ऑफ कटर्स और विद द हेल्प ऑफ फायर मैशर और विद द हेल्प ऑफ बेसिक हमारे पास कटिंग के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं, बाय प्रेसिंग देम सो वी कैन डू दिस कटिंग। नाइफ से भी कर सकते हैं, हैंड से भी कर सकते हैं,
तो आप बेसिकली करना क्या होता है इसमें, आप विद योर द टिप्स ऑफ योर फिंगर्स को उसको मसलना भी कह सकते हैं, तो यू कट, दैट प्रोसेस इज नोन एज कट इन. Fold in. So fold in is again you have to just blend a dedicated mixture into a heavier one using a rubber spatula, wooden spatula, wire whisk in a gentle up down or over motion so that mixture stays light. इसमें क्या करना, बाउल और स्पैचुला है, आपने फोल्ड इन करना है, ऊपर लेके आना है, फिर नीचे डाल देना है, फिर ऊपर लेके आना है, फिर नीचे डाल देना है. तो इससे चॉकलेट जब आप करते हो फोल्ड इन मेथड से ऊपर से नीचे, तो आप करके देखते हो, दैट इज फोल्ड इन. तो आप रबड़ स्पैचुला से भी कर सकते हो. अगर आप कुछ और सॉसेस कर रहे हो तो यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ स्पैचुलास, स्टील स्पैचुला, और विद द हेल्प ऑफ वुडन स्पैचुला. Kneading. So kneading is to work a wall of dough with the heels of hands, repeating presses, fold and turn motions until the dough is smooth and elastic. तो इसमें क्या होता है, with your heels of hands, जो आपका लास्ट हिस्सा है, प्रेस है पाम के बाद का, तो उससे आप उसको रगड़ते हो और इलास्टिसिटी देते हो, स्मूथ बनाते हो ताकि वो डो की फॉर्म में आ जाए. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज नीडिंग. इसमें क्या मिक्स हो रहा है, सपोज यू हैव एडेड वाटर, मिल्क, और मे बी यू हैव एडेड फ्लावर, और समटाइम्स यू हैव एडेड सॉल्ट. वो सारा का सारा मिक्स हो रहा है, लेकिन वो मिक्सिंग का बाद में एक डो फॉर्म में बन गया, आपको पता भी नहीं लगा. ठीक है, कि वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ गए सारे, वो उसी में ही मिक्स हो गए. मिक्स एक और सिंपल मेथड है टू कंबाइन 2 or more ingredients to one mass by stirring or beating them. स्टर करके ही, हिला के ही उसको मिक्स कर देते हो. You do that when you prepare salads. जब आप सैलेड्स बनाते हो तो आप मिक्सिंग करते हो वेजिटेबल्स की, और उस जब वो मिक्सिंग होती है तो दैट प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ स्पून, विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला, तो आप स्टर करा के हिला के उसको मिक्स कर देते हैं. सिफ्ट करना. Sifting to reduce dry ingredients to finer particles, add air to dry ingredients or combine dry ingredients by putting them through a sieve. आप क्या करते हो, आप एक एक्सपेरिमेंट करना सारे स्टूडेंट्स, कि आप एक कटोरी के अंदर आटा या मैदा ले लेना और एक छन्नी ले लेना. तो आप पूरा उसको एक प्रॉपर ऊपर तक, टॉप तक उस कटोरी को, बाउल को जब एक फ्लावर से भर लोगे, तो उसको सीव से, एक विद द हेल्प ऑफ सीव उसको छानना, और छानने के बाद यू हैव टू पुट दैट फ्लावर अगेन इनटू द सेम बाउल. तो आप क्या पाओगे कि अब वो बाउल में भरने के बाद भी कुछ आटा बच गया है. वो क्यों बचा है? सो थ्रू दिस प्रोसेस जो हवा है उस आटे के अंदर चली गई है, इनकॉर्पोरेट हो गई है, और उसने साइज बढ़ा दिया उस आटे का. तो आप यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट, सिफ्टिंग. तो इससे क्या होता है, फिर नीडिंग करोगे, ये सारे प्रोसेस से हवा जो है वो पूरी की पूरी उस डो में चली गई है. जब आप रोलिंग करके चपाती बनाते हो तो वो फूलती है. वो फूला क्या है, बेसिकली दिस इज द एयर व्हिच यू हैव इनकॉर्पोरेटेड थ्रू वेरियस मेथड्स. आपने सीव किया, उसको सिफ्ट किया, आपने नीडिंग की, आपने उसके बाद रोलिंग की, रोलिंग के बाद आपने उसको पकाया. तो कितने प्रोसेस से गुजरा, तो वो जो एयर है वो इन्हीं मेथड्स के अंदर साथ में गई है. Sifting. Then we have stir. Stir method is similar as mixed method, but here you have to stir it with the help of spatula or spoon or ladles. तो हिलाना basically circular motion में, और whisk भी है. Suppose you are preparing any sauce. आप बेशेमल बना रहे हो, तो आप क्या करते हो, सॉस पैन लेते हो, आप रू बनाते हो, वाइट रू. So equal quantity of flour and butter put together and cook together. फिर कब तक कुक करते हो, जब तक हल्का सा, जब कलर भी नहीं चेंज होने देते, जस्ट टू रिमूव दी स्मेल ऑफ दैट फ्लावर. उसका हल्का सा टच चेंज होता है, टेक्सचर, इमीडिएटली यू पोर दी मिल्क इन दैट. तो उसके बाद आप क्या करते हो, विद द हेल्प ऑफ विस्क और विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला आप स्टर करते हो उसको. तो वो जो रहता है इसी को स्टर है. आप वेजिटेबल्स बनाते हो, डिशेस बनाते हो, उसको मिक्सिंग करते रहते हो बार बार, उसको कहते हैं स्टर. टॉस करना. दिस यू डू विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला, आल्सो समटाइम्स विद द हेल्प ऑफ स्पून्स. आप क्या करते हो, कई बार तो कुछ भी नहीं चाहिए होता है, जस्ट यू पुट टेक दी
बाउल इन योर हैंड और आप ऊपर नीचे करते हो, जैसे टॉस करते हैं कॉइन के साथ, आप उछाल उछाल के चीजों को मिक्स कर देते हो। आपने एक सॉस पैन पकड़ा है या सौते पैन पकड़ा है, उसके अंदर कुछ चीजें डाली हैं और आप उसको हिलाते हो, तो हिलाने से ही टॉस हो जाता है। समटाइम्स यू डू विद द हेल्प ऑफ टोंग्स, टोंग से भी आप ऊपर नीचे करते रहते हो तो टॉस हो जाता है। देन वी हैव विप। विपिंग क्या है, आप विग्रेसली बीट करते हो, बहुत क्विकली बीट करते हो, सो दैट एयर जो है इनकॉर्पोरेट हो जाए और जो फ्लफीनेस मिल जाए उसको। तो बेसिकली इसमें भी विपिंग के अंदर क्या करना होता है, हमें एयर इनकॉर्पोरेट करनी होती है, जो हम जो जिस भी पर्टिकुलर चीज को हम फ्लफी बनाना चाहते हैं। सपोज आपने एग वाइट लिया, आपने क्रीम ली है, तो आप विपिंग करते हो तो वो फ्लफीनेस आ जाए, कि जो उसके पीक सी बननी, चोटियां बननी शुरू हो जाए। Then now these all are the mixing terms: whip, toss, stir, sift, mix, knead, fold in, cut in, cream, combine, blend, beat. So these were the mixing terms. Now come to the third part of my presentation. Hope I am going by time. 15 minutes for first part, 15 minutes for second part, and now last part is all about the cooking terms, which is basically part of preparation. Cooking is something different from food production. Food production और जो food preparation है वो cooking से थोड़ा different होती है. Making salad, the using raw vegetables and making any salad is not the part of cooking. Cooking only happens when you apply heat. So heat जो है जब तक अप्लाई नहीं होती है तो कुकिंग नहीं होती है। और फूड तो बिना कुकिंग के भी प्रिपेयर किया जा सकता है, बिना एप्लीकेशन ऑफ हीट के भी किया जा सकता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड प्रिपरेशन एंड फूड कुकिंग। कुकिंग इज समथिंग व्हेन यू अप्लाई द डिफरेंट मेथड्स। तो अब यहाँ पे मेथड्स आप देखोगे कि हर एक के अंदर हीट जरूर अप्लाई होगी। यही बेसिक प्रिंसिपल है कुकिंग का, कि एप्लीकेशन ऑफ हीट। सो कुकिंग हम कहते हैं कुकिंग इज ए basically mixing of ingredients. It's a chemical process of mixing of ingredients to prepare something under the application of heat. So what is the under the application of heat? First one is dry heat method. Dry heat methods के अंदर क्या होता है कि हमारे पास बिल्कुल ड्राई हीट दी है हमने, ना कोई लिक्विड है, ना ही कोई ऑयल है, ना ही कुछ चीज है, तो ड्राई हीट है। फर्स्ट बेक। ड्राई हीट में समटाइम्स यहाँ पे आप देखोगे कि अभी तक हमने बेकिंग में क्या होता है, अवन के अंदर ड्राई हीट आती है, ड्राई हॉट एयर आती है। एयर कैसे आती है, कुछ कन्वेंशन है, कुछ आप उसके अंदर जो क्या एलिमेंट्स लगे हुए हैं वो गर्म होंगे, तो गर्म होने से क्या होगा, टेम्परेचर गर्म करेंगे, उसका जो इन्वायरमेंट गर्म होगा तो वो गर्म हवा से क्या होगा, आप बेक कर सकते हो। पुराने टाइम पे जो बेकिंग वाला रहता था वो आग जला देते थे, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता था, उसमें भी कोई ऐसा तो नहीं कुछ किया था कि कोई पानी या कुछ ऐसी चीज है, तो वो ड्राई हॉट एयर जो है वो बेकिंग के लिए यूज होती है। सेकेंड इज ब्रॉयलिंग। ब्रॉयलिंग इज टू कुक अंडर कवर्ड फूड अंडर ए डायरेक्ट हीट सोर्स। आप इसको ये भी कह सकते हो कि सैलेमेंडर होता है, या फिर हम एक पैन में ब्रॉयलिंग कर लेते हैं कि आपने हर्ब्स डाल दिए, स्पाइसेस डाल दिए, नीचे से हीट हो रही है जो कंडक्शन मेथड से, तो उससे आप बिना कुछ डाले उसको ड्राई पका रहे हो तो वो गर्म होना चीज शुरू हो जाती है, तो दैट इज ब्रॉयलिंग बेसिकली। ग्रिल, तो ग्रिलिंग के ऊपर कुछ चारकोल पे बना सकते हो, आजकल इलेक्ट्रिकल ग्रिलर हैं, ग्रिल मार्क्स आ जाते हैं उसके ऊपर, तो वो हीट जब नीचे से आएगी फिर वो ग्रिल्स गर्म होंगी, वो ग्रिल्स क्या करेंगी, खाने को पकाएंगी। तो दिस इज अगेन ड्राई हीट मेथड। रोस्टिंग, रोस्टिंग जो है अगेन ड्राई है। सिर्फ रोस्टिंग के अंदर हम कहाँ पे ऑयल यूज करते हैं, जब बटर यूज करते हैं फॉर बास्टिंग। बास्टिंग मैं बताऊंगा क्या होती है, लेकिन रोस्टिंग के अंदर अगर सिर्फ रोस्ट ही करना है तो वी डोंट रिक्वायर एनीथिंग। इट इज जस्ट अगेन यू कैन डन विद इन एन अवन, क्ले अवन, तंदूर में कर सकते हो, या फिर आपने रोस्टिंग करनी है आप कुकर में भी कर सकते हो। बहुत सारे ट्रेंड्स हैं आजकल, पैन रोस्टिंग कर सकते हो। और सिर्फ होता क्या है, बेसिकली ड्राई हॉट एयर ही आनी है उसमें भी, तो ये ब्राउन होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, तो रोस्टिंग। बारबेक्यू, बारबेक्यू बेसिकली होता है इन फ्रंट ऑफ योर,
मतलब उसको लपटों के ऊपर ही देना में बेसिकली जो एक ट्रेंड था। तो यहाँ पे रोस्ट मार्क हैं, जो ग्रिल मार्क्स हैं, वो आपके सामने ही आप उसको कर रहे हो, ऑन दी हेल्प, डायरेक्ट आपके सामने हो रहा है। Basically this we can also say that it is the mixture of roasting as well as grilling, होना तो वही होता है but in front of you. So to roast slowly on a rack or spit over hot coals or some other direct heat source and baste with spicy sauce. Sometimes हम sauce से कर देते हैं, कुछ butter से कर देते हैं, तो that is the barbecue. Cooking terms, moist cooking methods होते हैं जिसमें moist चाहिए होता है, moist here means water. Boiling है, बॉइलिंग हमेशा 100 डिग्री पे किया जाता है। टू कुक फूड इन हॉट लिक्विड हैविंग बबल्स दैट राइज टू एंड ब्रेक ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो ये बॉइलिंग है। बॉइलिंग के लिए रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉट ऑफ वाटर, लॉट ऑफ हम सॉल्ट भी डालते हैं सो दैट बॉइलिंग जो है वो फास्टर मोड में हो जाए और टेम्परेचर जो है हल्का सा रिटेन रहे। ब्रेजिंग है, टू कुक लार्ज पीसेस ऑफ मीट और पोल्ट्री स्लोली ओवर लो हीट इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हॉट लिक्विड इन ए टाइटली कवर्ड पैन। तो ये जो टफ जॉइंट्स होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, उनको पकाने के लिए किया जाता है। तो इसमें कवरिंग करके फिर बाद में रख भी दिया जाता है ओवन में। लेकिन ब्रेजिंग क्या होती है, बहुत ही जो हार्ड और टफ जॉइंट्स रहते हैं उनके लिए किया जाता है। लॉन्ग प्रोसेस है, स्लो हीट पे किया जाता है, इमीडिएटली टेम्परेचर नहीं दिए जाते हैं। मैंने जैसे कहा कि बहुत ओल्ड एनिमल हो तो ब्रेजिंग जो है उसमें काम किया जाता है क्योंकि उनके मसल्स जो है बहुत ही हार्ड होते हैं। माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव ऐसे कुकिंग का हिस्सा नहीं था, लेकिन माइक्रोवेव जब इन्वेंट किया गया तो रीहीटिंग पर्पस के लिए किया गया था, बट नाउ डेज वी आर यूजिंग इट फॉर कुकिंग आल्सो। लेकिन माइक्रोवेव में क्या रहेगा कि जब तक अगर तो ड्राई बिल्कुल ही आप आटा रख दोगे तब कुछ भी नहीं होगा, तो मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड अगेन, दैट्स व्हाई दिस कम्स अंडर दैट दिस simmering. Simmering is not a method of cooking, but yes, it is a technique which is the part of cooking. Simmering, slow, आपको slow flame पे जब हल्के हल्के से बबल आने शुरू हो जाए, बॉइलिंग टेम्परेचर से बिलो जो है पॉइंट, वो सिमरिंग पॉइंट रहता है। आप सॉस पैन में कर सकते हैं, आप पैन में कर सकते हैं, तो फ्राइंग पैन में भी कर सकते हैं। तो ये रहता है लिक्विड यहाँ पे जो सिमर करना होता है। दूध भी सिमरिंग पे हो सकता है, स्टॉक्स हैं सिमर, और तीसरा जो है जो पानी है स्टीम। स्टीम इज बेसिकली भाप से खाना बनाना है। टू कुक फूड इन ए पैन यूजिंग वेपर, भाप जो है प्रोड्यूस्ड बाय बॉइलिंग लिक्विड। नीचे जो लिक्विड डाला है उसकी जो भाप ऊपर स्टीम जा रही है उससे हमें खाना बनाना है। इडलीज है, मोमोज है, ये एग्जांपल्स हैं, ढोकला है, ये सारे क्या स्टीमिंग की एग्जांपल्स हैं। और फिर है इसमें और भी काफी सारी टेक्निक्स आ जाती हैं। हमारे पास टेक्निक्स आती है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग क्या होती है? ब्लांचिंग इज अगेन ए वर्ड विच मींस ब्राइटन, शाइन देना। पर वो शाइन आती कैसे है? आप अगर आप देखो, आप थोड़े से लो फील कर रहे हो तो आप ठंडे पानी में अपने आप क्या फेस डालना, इमीडिएटली यू विल शेक योर माउथ और फेस, तो उससे क्या होगा, आप एकदम से फ्रेश हो जाएंगे। तो सिमिलरली जब यहाँ पे हॉट बाथ दिया जाता है उसके बाद कोल्ड बाथ दे दिया जाता है, शॉकिंग प्रोसेस से गुजरती है चीज, तो वो एकदम शाइन आ जाती है, ग्लो आ जाता है। आप पालक के साथ करके देखना, टमाटोज के साथ देखना, तो वो क्या होता है, काफी कलर कितना अच्छा आता है आफ्टर ब्लांचिंग एंड देन यू यूज दैट ब्लांच्ड वेजिटेबल्स। तो बीन्स है, ग्रीन बीन्स है, ग्रीन पी है, वो ब्लांचिंग प्रोसेस से गुजरते हैं। ब्लांचिंग अगेन 3 तरह की होती है, कोल्ड ब्लांचिंग, हॉट ब्लांचिंग एंड ऑयल ब्लांचिंग। ऑयल ब्लांचिंग की जाती है बेल पेपर और कैप्सिकम्स के ऊपर। कुकिंग टर्म्स, कुकिंग इन फैट मेथड्स, यहाँ पे है डीप फ्राई, जिसके अंदर जो फूड है वो इमेंस होना चाहिए ऑयल के अंदर। इसमें समोसा, कचौरी, कटलेट्स, ये सारी चीजें जो है आप डीप करके पका लेते हो। फ्रेंच फ्राइज, फ्राइंग है स्मॉल, इसमें भी सेम प्रोसेस रहता है। सॉटेइंग इज वेरी लेस ऑयल इज यूज्ड, और आप ज्यादा खाना रहता है तो उसको सौते करके हिला के सॉस सौते पैन में बना लेते हो, मॉइस्चर आ जाता है एक बार। जितनी भी हमारी सब्जियां होती हैं बेसिकली इंडियन वेजिटेबल्स बनाते हैं हम, वो इस मेथड से बना लेते हैं। और मेल्ट है, यहाँ पे मेल्ट करना एक टेक्निक रहती है जिसमें आप जो है लिक्विड फैट है उसको फैट सॉलिड है जो उसको लिक्विड में तब्दील करते हो बाय अप्लाइंग हीट।
Stir frying, this is a method which is basically very popular in Chinese cooking. इसमें क्या होता है, you put a little oil, ज्यादा ऑयल भी नहीं डाला जाता है, और आप जो इंग्रेडिएंट्स है डाल के उसको स्टर करते रहते हो. वो तो चाइनीज जो है वो वोक के अंदर बनाते हैं, हम कढ़ाई में बनाते हैं. तो सिमिलर मेथड है कि हिलाते रहना और वो जो है ऑयल अप्लाई होता रहता है, और स्टर फ्राइंग है. शैलो फ्राइंग होती है वेयर वी अप्लाई वेरी लेस फैट, जैसे हमारे परांठे बनाते हैं हम, या समटाइम्स कबाब शैलो फ्राई कर लेते हैं हल्का, और बटर या घी या फिर ऑयल डाल के, तो हम तवे पे बनाते हैं या पैन में करते हैं, वेरी लेस ऑयल, तो उसको शैलो फ्राई कहते हैं. प्री हीट करके रखा जाता है चीजों को, ये भी एक टेक्निक है. अवन को पहले प्री हीट करना पड़ता है, इमीडिएटली आप चीज डाल दोगे तो वो जब तक टेम्परेचर नहीं होगा, धीरे धीरे अगर करेगी तो चीज वो जो है फ्लफी नहीं बनेगा, स्पॉन्ज. और ये भी एक टेक्निक है जो हमें ध्यान में रखनी है. बास्टिंग इज ए टेक्निक वेयर यू अप्लाई सॉसेस एंड और बटर टू गिव शाइन, और एक फ्लेवर्स भी आ जाती हैं. वो ड्राई फॉर्म जो रहता है वो खत्म हो जाता है, मॉइस्चर कंटेंट रहता है. जब आप ब्रेक करोगे टिश्यूज को तो आप पाओगे कि वो लिक्विड है, मॉइस्चर है. अदरवाइज ड्राई हो तो आपसे च्यूइंग नहीं होगी. तो ये भी एक टेक्निक है. सीजनिंग में क्या होता है, यू अप्लाई दी स्पाइसेस. बेसिकली आज आप देखते हो पिज्जा के साथ में सीजनिंग देते हैं, ओरिगेनो आता है, या फिर चिली फ्लेक्स आते हैं. सिमिलरली इंडियन में हम सैलेड बना रहे हैं, जब मोमोज है ऊपर से चाट मसाला डाल देते हैं. समटाइम्स जो हमारे पास सॉल्ट रहता है, नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट, आप स्पाइसेस के साथ जोड़ के भी बना लेते हो, तो वो सारी चीजें सीजनिंग कर लेते हो. बेंट इज अगेन a very popular nowadays. We are going for cloud kitchen concept, और हम पैकेजिंग पे वो करते हैं. तो हमें जो खाना है वो पहुंचाना होता है, काफी टाइम लगता है. तो लेकिन जो फ्राइड फूड होता है अगर हम भेज रहे हैं तो बेंटिंग अगर नहीं है, अगर उसको होल्स नहीं करोगे आप, तो वो स्टीम जो है अंदर ही उस खाने को बहुत ही मॉइस्चर कर देगी, और जो हमारा फ्राइड क्रंचीनेस थी, क्रिस्पीनेस थी, वो खत्म हो जाती है. तो ये होल्स करके हम बेंटिंग नाउ यू विल फाइंड लॉट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल वेयर होल्स आर ऑलरेडी देयर. आप पिज्जा का भी देखोगे कि पिज्जा के बॉक्स के साथ में भी एक होल बन के आता है, ताकि वो जो स्टीम है वो साथ से बाहर निकलती रहे और अंदर पूरे खाने को सोगी ना कर दे. तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो वेरी मच. होप आई हैव टेकन दी टाइम जो मुझे दिया गया था पूरा का पूरा. और अगर अब आपके साथ कोई भी क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क मी. कि तीनों आउटकम्स थी. सेशन हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था. पहला था प्री प्रेपरेशंस, दूसरा था मिक्सिंग, तीसरा था प्रेपरेशंस. तो इसमें से तीनों ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं 3 हिस्सों में. अब ये आउटकम्स हैं. बेसिकली मेरा फायदा तभी है यहाँ पे डिलीवर करने का. मैंने आपके ऊपर जो टाइम लगाया है, टाइम के बदले मैं चाहूंगा कि आप इसको बड़े ध्यान से हर टर्म को ध्यान से पढ़े, आइडेंटिफाई करें, और जो आउटकम्स मैंने लिखी आप उसको फुलफिल करें. तभी फायदा रहता है एक टीचर के लिए और एक जो डिलीवर कर रहा है कोई भी, उसके लिए कि आप लोगों ने ध्यान से सुना है. यस नरगिस, यू हैव रेज्ड योर हैंड. Yes, sir. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Yes. Sir, my question is, what is amalga method? In starting, you said amalga method. अमेल्गा मेथड नहीं है, अमेल्गामेशन होता है जब दो चीजों के दो मेथड्स को जोड़ लिया जाए, उसको कहते हैं अमेल्गामेशन. मिक्स कर देना दो चीजों को, दो प्रोसेस को इकट्ठे कर देना, उसको कहते हैं अमेल्गामेशन. वो इंग्लिश वर्ड है, उसका किचन से कोई लेना देना नहीं. ठीक है. Okay. हाँ Thank जी. you, sir. Yes. Yes. Nikhat, Seema, Lakshmi, all of you have raised hands. You can ask one by one. Hello. Yes. Good afternoon, sir. My name is Lakshmi Kumari. Yes. Sir, Lakshmi, my tell me. question is, what is braising? Braising. Yes, sir. ब्रेजिंग क्या रहता है कि हमने स्लो जो जितना भी अभी मैंने आपको दिखाया, जो हार्ड जॉइंट्स होते हैं ना बहुत ही ज्यादा. आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. उसमें क्या रहता है कि जो बहुत ही टफ जॉइंट्स रहते हैं ना मीट के, उनको स्लोली पहले तो थोड़ा सा ऑयल डाल के स्लोली ब्राउन कर लिया जाता है, फिर उसके अंदर मॉइस्चर डाल लिया जाता है,
टाइट वेसल, उसको ना एक वेसल को सील कर लिया जाता है और धीरे धीरे जैसे स्ट्यूइंग होती है ना, हल्का सिम कर देते हैं और पकता रहता है, पकता रहता है, पकता रहता है। इट इज बेसिकली उससे थोड़ा डिफर हो जाता है। इसमें स्टीमिंग और जो रोस्टिंग है, दो मेथड से बनता है। पहले तो हम रोस्ट करते हैं ऑयल के अंदर उनको, और उसके बाद क्या करते हैं हम स्टीम देना, वो भाप से पकता रहता है, पकता रहता है, और वो स्लो होके काफी टाइम बाद जो है डिश जो है सॉफ्ट कर देता है उन टिश्यूज को। तो मीट बेसिकली कैबेज और मीट्स पे करते हैं जो टफ होते हैं। तो रोस्टिंग और जो स्टीमिंग है उसका कॉम्बिनेशन मेथड है ब्रेसिंग। Okay, thank you, sir. यस लक्ष्मी। Yes, sir. Good afternoon, sir. My name is Tarima Mahto. यस Sir, मेरा क्वेश्चन है कि आपने बताया बैटन और जार्डिनियर, इसमें डिफरेंस क्या होता है? बैटन्स जो होते हैं, जार्डने जो है बेसिकली साइज का डिफरेंस रहता है। बैटन्स थोड़े से मोटे रहेंगे जार्डनर से, ठीक है। आपको साइजेस का डिफरेंस रहता है उसमें, और कुछ डिफरेंस नहीं है। शेप जो रहती है वो उसकी भी शेप वही होती है, सिमिलर ही रहती है। लेकिन जब उसकी एक वन साइड इज लिटल, जो बैटन्स रहते हैं ना बेसिकली आपने एक क्या कहूँ उसको, लंबी लॉन्ग वो रहती है एक ना खेलने के लिए चौक, जैसे डाइस होता है ऐसे ही एक और चीज आती है वो फेंकी जाती है लंबी। तो वो चार उसकी जो साइजेस होती हैं दो साइड से, तो वो अब एक छोटी रहती है, और जो लंबाई में मैंने लेंथ बना के दी थी आपको वो रहती है। लेकिन ज्यादा नहीं, हेलो, Yes, sir. तो उसमें सिर्फ साइज का डिफरेंस रहता है बेसिकली। जो उस मैं यहाँ पे आपको उसकी पिक्चर दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा समझाने में, उस वर्ड को मुझे हिंदी का Yes, sir. समझ नहीं रख रहा। ये है बैटन्स बेसिकली, आप देख रहे हैं, Yes, sir. ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एक ये साइड्स तो बराबर हैं, दूसरी साइड्स जो हैं वो छोटी हो सकती हैं, ठीक है, स्लाइस में हो सकती हैं। लेकिन जो जारने रहता है वो चार साइड सेम रहती हैं, दो साइड सेम रहती हैं। इसमें तीन तरह के साइजेस मिलते हैं बैटन्स में, 3 डिफरेंट, 2-1, 2-1 और 2-1। यहाँ पे क्या रहता है कि will do it, see it practically, then चीज को जब देखोगे आप ध्यान से तब होगा। Yes, sir. जो सिर्फ ग्रिल, मेरा क्वेश्चन है Yes, sir. कि Thank बारबेक्यू में क्या डिफरेंस है? ग्रिल जो बारबेक्यू है वो रोस्टिंग मेथड से भी हो सकता है। आपने तो रख दिया तवा रख दिया है, आपने एक सीख लगा दी है, उसके ऊपर घूमी जा रहा है, वो भी है। लेकिन बारबेक्यू आपके सामने ही हो रहा है। बारबेक्यू की जो एक्चुअल डेफिनेशन थी वो ये होती थी पहले कि इन फ्रंट ऑफ ऑल, जब आप कुछ भी रोस्ट और करना शुरू करते थे। लेकिन बाद में क्या है कि जो दोनों मेथड्स रोस्टिंग और ग्रिलिंग इसके हिस्से में आते हैं, लेकिन जो वैसे ग्रिलिंग और रोस्टिंग है वो डिफरेंट टेक्निक्स चली जाती है। ओके, थैंक यू सर। यस, गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज सीमा कुमारी। हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बारबेक्यू मेथड में हम किस तरह का चिकन का पार्ट्स को यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा, या फिर होल चिकन केवल यूज होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि होल चिकन होगा। आपने कुछ और सपोज बारबेक्यू तो नीचे चला दिए फ्लेम्स और ऊपर से बारबेक्यू करी जा रहे हो, आप तंगड़ी करो, आप चाहे तो थाइस करो, आप चाहे तो जो हमने यहाँ पे कुछ शोल्डर पीस लिया, जो आपके इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा कुछ नहीं है कि एक सिंगल चीज ही हो सकती है बारबेक्यू। बारबेक्यू कोई भी पार्ट किया जा सकता है, डिपेंड अपॉन डिश कि आप क्या कौन सा बनाना चाहते हैं। यस सर। ठीक है, आप होल एनिमल भी देखा होगा आपने मूवीज में कि पूरा, जब आपने एक शादियों पे या इवेंट्स पे देखा होगा, यू फाइंड दैट द होल एनिमल एक उस पे लगाया हुआ है और नीचे से फ्लेम चली हुई है और घुमाते रहते हैं। दैट इज बेसिकली अगेन बारबेक्यू।
यस तो सर, उसमें थैंक यू। तो सारा ही आप छोटे छोटे करोगे तो वो छोटे हो जाएंगे, आप सीखों को भी ऊपर रख दोगे वो भी बारबेक्यू। यस सर, थैंक यू सर। Good afternoon, sir. My name is Sumaya Khatun. यस सुमैया। Sir, my question is, what is dissolve? डिसॉल्व होता Dissolve. है, डिसॉल्व रहता है बच्चे कि आपने कोई चीज मिलानी है लिक्विड के अंदर। सपोज आपने शुगर लिए, शुगर का पाउडर भी नहीं है, ग्रेनुअल्स है, तो वो पानी में डाल के विद द हेल्प ऑफ स्पून आप उसको हिलाते रहोगे तो वो क्या होगा, वो जो शुगर है उसी में मिल जाएगी। सॉल्ट है, सॉल्ट उसी लिक्विड में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो जो मिल गया उसको कहते हैं डिसॉल्व हो जाना, वो उसी का ही बन के रह जाता है। ठीक है, तो वो हो जाता है डिसॉल्व। Yes, sir. Thank you, sir. Good afternoon, Chef. My name is Sadaf Hussain. यस The question is, what is deforest? Deforest. डीफ्रोस्ट, डीफ्रोस्ट रहता है कि आप एक रेफ्रिजरेटर में ना आप क्या देखोगे, जब माइक्रोवेव में हम फ्रोजन फूड करते हैं ना, -डिग्रीज में रखते हैं ना, टेम्परेचर में स्टोर करते हैं चीजों को, तो वो स्टोर करने से क्या होता है कि वो बचाने के लिए हमने स्टोर किया हुआ है ताकि वो उस टेम्परेचर में सेफ रहें। लेकिन उनको इमीडिएटली निकालेंगे, उसमें बहुत सारी बर्फ होगी, तो उस बर्फ उसमें जम चुकी है, सारा कुछ हो चुका है माइनस में रहने के कारण, फिश है, पोल्ट्री है, तो उसको पहले हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आना पड़ेगा। जो नॉर्मल टेम्परेचर जो जिसमें हम उसको फ्रीज करते थे, वॉक इन में रखते थे, वॉक इन का टेम्परेचर रहता है बेसिकली बिलो 5, तो 4 और 5 डिग्री तक लाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको थोएंगे डीफ्रोस्ट। तो एक डीफ्रोस्ट रेफ्रिजरेटर में भी रहता है, जब ज्यादा बर्फ जम जाती है तो आप उसको एक स्विच दबाते हो जिसका नाम होता है डीफ्रोस्ट, तो वो सारी बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है। सिमिलरली माइक्रोवेव में डीफ्रोस्ट रहता है, जब आपने फ्रोजन फूड लिया है आप माइक्रोवेव में डाल के डीफ्रोस्ट कर दोगे, वो उस टेम्परेचर तक कर देगा उसको। Okay, Chef. Thank you, Chef. Yes. Good afternoon, sir. My name is Pratima Hasda. Sir, Yes, my ma'am. question is difference between saute and toss. सौते एंड टॉस, टॉस और सौते बेसिकली, अब टॉस तो विदाउट ऑयल भी कर सकते हो आप। सौतेइंग इज ए मेथड वेयर यू नीड ऑयल। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ, सौतेइंग इज ए कुकिंग मेथड बेसिकली, और जो क्योंकि आपने हीट अप्लाई की है, टॉस में जरूरी नहीं है कि आप हीट अप्लाई कर रहे हो, आप तो टमाटर लिए और शिमला मिर्च ली, तीनों की डाइसेस काटी और हिलाना शुरू कर दिया, टॉस करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं डाला आपने, कुकिंग नहीं अप्लाई की है। टॉस होता है बेसिकली हिलाना ऊपर को। सौते इज आल्सो टू जंप, बट सौते इज द मेथड वेयर ऑयल इज रिक्वायर्ड, वेयर फैट इज रिक्वायर्ड। टॉस में ऐसा कुछ है नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है। दैट जनरली मीन्स टॉस करके जंप करके मिक्सिंग करनी। Thank you, chef. Yes. Chef, shall we go ahead with the procedures? Yes, yes. I have mentioned about the ID of my on Instagram, और यहाँ पे मैंने दूसरी भी लिख दी है। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन आस्क देयर, क्योंकि यहाँ पे अगले माय कोलीग शेफ ही विल बी रेडी विद हिज प्रेजेंटेशन। तो टाइम जो है ऑलरेडी मैंने उनका 1 मिनट एक्स्ट्रा ले चुका हूँ। तो बाकी खुशबू, रीना, यू कैन आस्क मी ऑन दैट मैसेंजर और इंस्टाग्राम। किसी और स्टूडेंट का भी क्वेश्चन होगा तो दे कैन आस्क। Okay, so thank you so much, Chef Rana. I would request Chef Jawaji to go on with the felicitation. Yeah, certainly. Yeah. Thank you, Chef Varinder Singh Rana. There's a certificate of appreciation on behalf of IFCA for being a trainer and imparting knowledge on the Chef Mastery held of this month. Thank you and God bless you. We appreciate your time on behalf of IFCA. Thank you, Chef Ramesh. Thank you so very much for this great honor, and thank you, Pavitra, for hosting this webinar in a very great and perfect manner. Thank you so very much. Thank you. Thank you once again to IFCA and Kaushal College. Thank you so much, Chef.
Thank you so much, Chef, for the interactive session. So we'll be going for a 5-minute short break and we'll come back exactly at 4 o'clock. It's almost going to be. स्टूडेंट so डोंट maybe- लॉग आउट, आप लोग लॉग इन रहेंगे, 5 मिनट में सेशन Yeah. आएगा. Chef Karthikeyan, how are you? Good to see you after long. I'm good. I'm good. How about you? Yeah, you are looking very smart, handsome. Nothing to do, no. How is everything? Situations all good? You're mute. You're mute. Yes, this week only we have started our operations. Oh, okay, okay. That's at least better, no? So only online, everything is going on. Online. If not, I think this year we should have met. We should have all met, right? By 2021 now. Yes, now let's see. Yeah. It's depend online we are meeting, but offline let's see what will be the government guidelines in future. Abhi to hope so we will start like from next month. Abhi aa rahi hai thodi धीरे धीरे खुल के guidelines. Right. So okay, then give me permission to. I Yeah, will Chef, definitely rejoin once again. Chef Devinder, could you please wait for a second? Wait for a minute, in fact. Thank you so much from Kausal College. During the session, we could not actually pitch in. And thank you for your time and valuable inputs. And at the same time, we are utilizing this break in the to welcome Chef RK also for the next session. So let us stay connected, and it's good. You all are actually helping us in molding the kids so that they could change their life, they could transform their life. Thank you so much, Chef. Thank you. It's again honor for us basically कि ये सबसे अच्छा सौभाग्य रहता है कि जब यंग फेलोज के साथ में अब इतने सारे क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत एक वो रहता है, अच्छा एक इंटरेक्शन हो जाती है, तो और आगे से आगे की इनका क्या थॉट प्रोसेस है, नेक्स्ट टाइम इफ वी हैव टू डिलीवर तो किस तरीके का हमने कंटेंट डेवलप करना होता है. तो इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस अगेन. So good afternoon, Chef Raju Karthikeyan, Chef RK. Good afternoon, Chef. Yes, Now I know your full name. Most people know only by RK, right? So that's what I said. RK means what? So, whatever. So now today I know, no problem, no more mystery. Raju Karthikeyan. Thank you. Welcome. Thank you. We'll just wait for the thing no to start. Problem. No problem. I'm also keen to see a lot of, like the students, I'm also waiting. Chef. Food photography. Excellent. Actually, I never knew that it is open for us to always be in this platform, so that I will also be learning in everyday's session. No, you can join. I never knew this, because today I know that it's a continuous process. No, probably, yeah. They say education is the progressive discovery of one's own ignorance. So today we are educated on one more aspect. I'm also I know so many things like, one good thing, even I learned, okay, we'll talk, we won't wait. Yeah, sure. I will, could I, Rajita, I'll introduce, Yes, sorry to interrupt. So, good evening all. We welcome you to the next session by Chef Raju Karthikeyan. Chef Devaji, please introduce. All right.
Chef Raju Karthikeyan is a chef. He's a consultant, food stylist, and photographer. His culinary journey started at the age of 3. My goodness me. I didn't even know how to spell anything. He graduated at Sunrise Global Chef Academy, worked in Singapore Airline Catering Services, OSATs, Mama Lucia Italian Fine Dine, Brazilian Churrascaria, Mama's Caribbean Bar, Azura Beach Club. He also got trained under World's Top Chefs, and I've worked with them for pre-setups, etc. He came back to India and worked as a consultant for starting up and setting up new restaurant hotels for about 6 years. For about 6 years. Also, he's doing professional food photography and photo shoots for food styling, for TV commercials and major food brands and kitchen appliances. He's also an expert in creating recipes for the appliances, comparison of products and testing, and a lot of things. So we welcome you, Chef Raju Karthikeyan. I think it's going to be interesting. So you will bring a different paradigm from the different parts of the globe. And I know what it is, like also been everywhere, but you're getting a photographic angle, so it will be a 3D effect. So God bless you, and may the students enjoy your program. Thank you. Thank you. Thank you, Chef. Thank you, Chef. Thank you for welcoming me. And yeah, very good evening to one and all, to all the students of Kaushal College. And I would like to thank IFCA for giving me this opportunity to take this up forward to showcase the food photography, and really thanks for IFCA to giving an importance to this food photography, because this is going to be a future. So as we are already, I know Chef introduced me, I think probably I can straight away jump into our lessons and progress to what we are about to start. So yes, let me open up our stop. Okay, so I think you can all see the yes of the students. The screens, right, Chef? We are so able as you can sorry, Chef RK, we are able to see your screen. Right. Yes. Okay. So yeah. So basically, who am I? Just know what Chef already. I think he had a brief, introduction about me. Yeah. I sorry, Chef. There was a small mistake. I was not learning at my age of 3. It was at my age of 8. Sorry for that. So yeah, that's how I started actually my career. And basically, I'm a 3rd generation chef, where my father is a chef, my brother is a chef, and my grandfather was also a chef. In this generation, out of all these things, I just came out with this upgrading myself by going to Art Sunrise in Singapore. And I was also been working with a lot of chefs, world's top chefs like Joel Reboshan, like Chef John Sloan, Chef Eric, a lot of chefs, we can name it, because we learn a lot of things from them, even it might be a short period, and we learn a lot of things when we are doing, like workshops and stuff like that. So that's how I have also decided to go on, because I also learned food photography there in Singapore, because I also have a passion of photography and videographies too. So what helps this, that is what we are going to discuss about today. So these are all the small things what I want to share with you, the experience and the way I have actually passed through in my life, past lives. And this is where I wanted to also emphasize on the photography. If I don't have these pictures with me, so today I don't think so I can prove all these things to you, because I have we actually missed a lot of places and chefs which I was not able to take pictures. So I will always feel regret that I don't have a picture with them, so that I can show what it is. But it's still fine, because my skill shows what it is exactly. So beyond that, what is food photography and food styling and food shoots? This is what I wanted to discuss today. And we in our food industry, we have an open opportunity for food, food photography and food styling, which is in a dark area where people are not aware of this, because people, what they think is, once they complete their studies, they think that they only wanted to work in kitchen. It is not that only place that we need to be there.
That's not only the place where we need to be. We can have a lot of different dimensions. That is what today you guys are gonna really look into it. I think I am talking in English. If it is not, please understandable for the students, my apologies, but I will try to convey if it is possible. If you wanted to ask any questions in Hindi, probably I might little bit here and there. I can understand Hindi. So probably I can give you the answers in English if you guys can understand. So yeah, before, what is food photography? This is what we are, looking into. It's all about presenting the food in front of the consumer eyes before they taste the food. So how are we gonna rely on this as a chef or probably as a hello, hotelier? excuse me, chef, 1 minute. Chef, sorry, good afternoon, chef. Good evening. Good chef. afternoon. How are you? I'm One good, chef. minute. Is Atul or Saurav online? Yes, chef. See, his presentations are something good, which will be useful. So after every slide, if you can translate in Hindi, it would be good. Fine, chef. I'll do that. Thank you. Thank you, RK. Thank you. Bye. Thank you. Thank you, chef. Thank you, chef. Suddenly, a small break with the chef. Yeah, so this is what I wanted to tell you. So whenever any food is being cooked by a chef, or probably not only the food comes out only from the kitchen, also from the consumer point of view, when you are always looking into any food which is coming out from a factory or probably from any food industry, or even in a flight or wherever you go, the first appeal is always the pictures, what they look into the brochures or probably in the advertisements or what it is. So before the consumer decides to take that place, this is the first key point where they always need to come into the place. So you need to have a good presentation and you need to have really a good, how do you say this, sense of colors to project your food, and it should be wow always. Then that is how you pull your customers or your consumers to your place. So as a chef, if you want to win your foods to be tasted by a lot of people, so the first thing is that you need to project your food in upscale manner, and it should be displayed before it goes to their palate. So this is the main thing what we are looking into, a food photography. So the food photography doesn't, as I mentioned earlier, it is not only ending up only in restaurant or a hotel. As you every day you go out to have anything, you might go look at a hoarding, or probably you might buy a packet of bread, or probably a packet of masala. In everywhere there is a food photography involved, and everywhere there is a opportunity to see the food before you buy. This is what indirectly what we do is, we never know that in the past history, not only today, in the past like 30-40 years since the media has been boomed, every day-to-day life, whatever product we've been consumed is only we see that before we buy. So if you see an advertisement, it registers in your mind. When you go to the consumer product or the place where you buy, you pick the right product at the right time, because it has been registered in your mind through your eyes. That is the first entry to your mind. So that is why your food photography is very, very, very important. That is what I do, because and also one more thing, it is an open opportunity, as I mentioned earlier, right? So all about food, that is what we are going to talk, right? So chef, should I translate it once? Yes, please. Yeah, please. Yeah, please. Students, यहाँ पर शेफ जो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि फूड फोटोग्राफी से उनका तात्पर्य ये है कि आप किसी गेस्ट के पास जब आपका बनाया हुआ फूड पहुंचता है, उनके गेस्ट के टेस्ट करने से पहले वो फूड उन्हें जिस रूप में दिखाई देता है, उनके आंखों को भाता है, यही फूड फोटोग्राफी का सबसे पहला कदम है। इसके साथ शेफ आरके ये भी कहते हैं कि ऐसी जरूरी बात नहीं है कि फूड फोटोग्राफी या उसकी जरूरत जब आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं सिर्फ तभी उसकी जरूरत महसूस की जाएगी, बल्कि अगर आप किसी शॉप में जाते हैं, कोई एक मसाला खरीदते हैं, कोई एक पर्टिकुलर पैकेट खरीदते हैं, खाने पीने की कोई सामग्री खरीदते हैं, तब भी वो एक फूड का प्रोडक्ट है, एक इंग्रेडिएंट है, वो आपके सामने आता है, वहां पर भी इसका महत्व उतना ही होता है।
और हम सभी जानते भी हैं कि देखने से एक इच्छा जागृत होती है। शेफ ने एक वर्ड यूज किया कि पैलेट इंक्रीज होता है, पैलेट तैयार होता है, प्रवृत्ति बढ़ती है, इच्छा बढ़ती है खाने की। तो ये विजन से, पहली झलक से ही ये सारी बातें अपने आप आएंगी। पहले आंखों से लोग देखते हैं, खाने को खाते हैं या महसूस करते हैं, और उसके बाद एक्चुअली उसको टेस्ट करते हैं। यस शेफ, प्लीज। Yeah. So, and then as what we are looking into it next, why as a chef, we have more important to know food photography. This is very, very good. You know, like always, I used to ask everybody, and I used to ask also myself this question. So when a chef, as a chef, we know better knowledge about the food when it is, you know, comparatively to a normal photographer. Always I will tell this, a photographer can be a good photographer, but he can never be a chef. But a chef also can be a photographer unless or until he is really looking into as a photographer's view. There's a difference is because as a photographer, he doesn't know what the taste should be, what it goes to together with it. For an instant, if you want to really have probably if you want to put a tomato in something else, you know, like which is not relevant to that food. So in that manner, you know, just for colors, he might pick tomatoes. But you should really know that you should, as a chef, we know what colors to bring in what food. That is very, you know, like that's a key point what as a chef we have. And not only the color what we are talking about, we can talk about textures, we can talk about, you know, like the smoothness, or that is what we call it as textures, right? So and you know, these are the elevations also we consider every time, because you